इस विद्या की क्या महिमा है, इसी भाव को लेकर मैं एक छोटा सा गीत रखने जा रही हूँ। फिर से सभी को नमस्कार। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। इसे पाके ऐसा हमें लग रहा है, इसे पाके ऐसा हमें लग रहा है कि जैसे कसम से जहाँ पा लिया है। कमी जिंदगी में नहीं कोई भी अब, इसे पाके ऐसा हमें लग रहा है। हमें एक नई रोशनी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। समझने के रास्ते पे चलते रहेंगे, समझने के रास्ते पे चलते रहेंगे। हुई भूल गर तो समझते रहेंगे, कसम से करेंगे भ्रमों की समीक्षा, तो रास्ते हमेशा सुलझते रहेंगे। हमें राह फूलों भरी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, मिली ये समझ जिंदगी मिल गई है। नमस्ते। એટલે જે પણ આપણે કન્ટેન્ટ લીધો એનું એક વખતે આપણે ગુજરાતીમાં થોડુંક
લઈ લઈએ અને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રશ્નના ઉત્તર પણ લઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં ગઈકાલે આપણે જે ચાલુ કર્યું તો પહેલા દિવસે આપણે શિક્ષા ક્यों એ વસ્તુની આપણે વાત કરી. તો માનવને શિક્ષાની જરૂરત શેના માટે છે? તો માનવને નિશ્ચિત આચરણમાં આવવા માટે બેઝિકલી આપણે શિક્ષામાં સંસ્કાર વિધિથી આગળ વધવા માટે આપણે શિક્ષાની જરૂરત છે. આપણે પહેલા દિવસે એ વસ્તુની વાત કરી. હવે માણસને અત્યારે શિક્ષા જોઈએ છે, તો શિક્ષા કઈ વસ્તુની જોઈએ છે, એમાં શું છે એને સમજ જે જોઈએ છે, તો આપણે એના આગળ હવે આગળ જઈએ છીએ. અને આપણે સૌથી પહેલો પોઈન્ટ ગઈકાલે લીધો કે જિંદા રહેના અને જીના. એટલે આપણી સેશનની શરૂઆત જ એ વસ્તુથી થઈ કે જિંદા રહેના અને જીનાનું ડિફરન્સિએશન શું છે. તો એમાં ઘણા બધા લોકોએ એક એમાં ભાગ ભજવ્યો અને એમાં કીધું કે ભાઈ જિંદા રહેના એટલે આપણે આહાર છે, નિંદ્રા છે, ભય, મૈથુન ને આપણે જે પણ બધી વસ્તુઓ રોજનો કાર્યક્રમ કરીએ છીએ એ બધું જિંદા રહેવાનું છે. અને જીનાની જ્યારે વાત આવી તો જીનાના કેસમાં પણ આપણે ઘણી બધી ક્લેરિટી સાથે આપણે લખ્યું કે ભાઈ કે વિશ્વાસપૂર્વક જીવવું છે, પછી હોશમાં જીવવું છે, પછી આપણા સમજની સાથે જીવવું છે, એ બધી વસ્તુ છે. હવે એમાં એક ડિફરન્સિએશન આવ્યો આહાર, નિંદ્રા ને ભય અને મૈથુનમાં અને આપણે જે જીવવું છે એમાં. તો પછી એક ક્વેશ્ચન ઉદ્ભવ્યો કે ભાઈ આપણે જીવવું કેમ છે? હલો, હા બરાબર. આપણે જીવવું ક્यों જીના હે સૌથી પહેલો એક ક્વેશ્ચન એ આવ્યો. અને એ ક્વેશ્ચન જ્યારે આવ્યો ત્યારે એમાં આપણે જ્યારે અંદર ચર્ચા કરતા ગયા તો એમાં એક વસ્તુની આપણને ક્લેરિટી થઈ કે માણસને નિરંતર સુખ જોઈએ છે. માણસને નિરંતર સુખની જરૂરિયાત છે, એ એની પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાત છે. હવે ક્યાંક ને ક્યાંક જિંદા રહેવાના જે બેઝિસ છે એના ઉપર આપણે આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન એ બધી વસ્તુઓ આપણા સુવિધાના ક્ષેત્રમાં આવે છે અને એ સુવિધામાંથી સુખ લેવાની કોન્સ્ટન્ટ પ્રયાસ માણસ કરી રહ્યો છે. આપણે ગઈકાલે એ વસ્તુ જોઈ. અને સુવિધા એક એવી વસ્તુ છે કે એ જ્યારે આવશ્યકતા છે શરીરને ત્યારે જ આપણને જોઈએ છે. એટલે સુવિધાથી નિરંતર સુખ મેળવવું એ પોસિબલ નથી. એનું કારણ છે કે એક સમય પછી સુવિધા પણ એક અધિક તમારા માટે એ દુઃખનું કારણ બની જાય છે. જેમ ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ લીધું કે રસગુલ્લા 2 ખાશો, 4 ખાશો, 5 ખાશો, પછી એક વખતે 7, 8, 10 પછી આપણને પોતાને એ અંદર પોતાને દુઃખ અનુભવવા લાગશો કે નહીં બસ હવે બહુ થઈ ગયું. એક તૃપ્તિ આવી જશે કે નહીં હવે આ નથી ખાવું, એનાથી વધારે હવે મારા શરીર માટે પણ મને જરૂર નથી, અને અંદર પણ આપણને એ થાય છે. તો ક્યાંક આપણી સમજણમાં એક એ હજી સુધી આવ્યું નહોતું. આપણે સુવિધાના પાછળ લાગેલા છીએ. નિરંતર સુખ આપણને જોઈએ છે એ આપણે આપણા અંદર જોઈ જ શકીએ છીએ. દરેક માણસ જે અહીંયા બેસેલો છે એ અંદર એક વખતે જો જોઈએ તો એને એ ખબર પડશે જ કે ભાઈ મારે અત્યારે નિરંતર સુખ જોઈએ છે અને હું ટ્રાય કરી રહ્યો છું સુવિધાથી મેળવવાનું. સુવિધા એક સીમિત વસ્તુ છે, સુખ એક અસીમિત વસ્તુ છે, અને સુવિધાથી મને કોન્સ્ટન્ટ સુખ નથી મળી રહ્યું. એનું ગઈકાલે આપણે ડિફરન્સિએશન ઘણું ક્લિયરલી અને ઘણું સારી રીતે આપણે સમજ્યા. અને એમાં જ્યારે આપણે આગળ વાત કરી તો સુવિધાના કેસમાં અને સુખના કેસમાં તો સુવિધા જે છે તો એ જ્યારે જરૂરિયાત હોય છે ત્યારે જોઈએ છે. એમાં પછી આપણે ટ્રાયલ કરવા લાગ્યા કે હવે જે વસ્તુથી આપણને સુખ કોન્સ્ટન્ટ નહોતું મળતું એમાં પછી આપણે બહુભોગ અને અતિભોગ કરવા લાગ્યા. અને એમાં બહુભોગ એટલે ક્વોન્ટિટી અને વેરાયટીમાં જતા રહ્યા કે ભાઈ થોડું વધારે લઈએ તો ઊંઘ વધારે લઈએ તો ખાવાનું થોડું વધારે લઈએ તો અલગ અલગ ટાઈપના ટેસ્ટ ડેવલપ કર્યા ખાવામાં, અલગ અલગ ટાઈપની વાનગીઓ ડેવલપ કરી, એનાથી આપણે સુખ મેળવવાનો ટ્રાય કર્યો. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ આપણે એમાં પાછળ જ રહ્યા અને આપણને નહીં મળી શક્યું કોન્સ્ટન્ટ નિરંતર સુખ. અને એ આપણે આપણી જીવનના અંદર જોઈએ તો પણ આપણને એક વસ્તુ એ ક્લિયર થાય છે. પછી આપણે સુખમાં આપણે નિરંતર સુખ જોઈએ છે. તો હવે નિરંતર સુખ કઈ રીતે મેળવવું એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે ભાઈ નિરંતરતા, સુખની નિરંતરતા કઈ રીતે લાવી? સુવિધામાં નથી તો અત્યારે સુખની નિરંતરતા લાવી કઈ રીતે? તો એમાં એક સૌથી આપણો પ્રસ્તાવ ગઈકાલે એક મૂકવામાં આવ્યો કે ભાઈ સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही સુખ હૈ. હવે આ જ્યારે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही સુખ હૈ, એમાં ઘણા બધા લોકોને એક ક્વેશ્ચન માર્ક ઊભો થયો. એમાં સ્વીકૃતિ પહેલાં તો શબ્દ ઉપર જ ઘણી વખતે હું તમને કહું કે એક ક્લેરિટી ના આવી. એના પછી સ્વીકૃતિ એટલે કોની સ્વીકૃતિ એના ઉપર પ્રશ્ન આવ્યા. એટલે ગઈકાલે ગોષ્ઠીમાં અને ઇવન બપોરે જે આપણે જે બ્રેક હતી એના વચ્ચે જે જગ્યા પર ડિસ્કશન થયા એના અંદર આપણે એ ક્લિયર કર્યું. પણ તોય હજી મને એવું લાગે છે કે ઘણા લોકોને ક્લિયર નથી. એટલે એનું થોડુંક આપણે ડિટેલમાં લઈ લઈએ કે સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही સુખ હૈ એટલે એ સ્વીકૃતિનો ભાવ છે મારો પોતાનો છે.
મારે સામેવાળાની સ્વીકૃતિની વાત નથી કરવાની, મારા પોતાના અંદર જોવાનું છે કે મારો એ વસ્તુનો સ્વીકૃતિનો ભાવ છે કે નથી. કોઈએ મને કંઈક કીધું અને મારે એ વસ્તુને હા પાડવી કે ના પાડવી એ સ્વીકૃતિ અસ્વીકૃતિ નથી. એ જે રીઝનથી મેં હા પાડી છે એ રીઝનની મારી સ્વીકૃતિ છે કે નથી, આપણે એ રીતે જોવાનું છે. ગઈકાલે જ ગોષ્ઠીમાં એક પ્રશ્ન આવેલો કે મને પપ્પાએ વેકેશનમાં ભણવાનું કીધું, બરાબર, અને હું ભણવા બેસ્યો, પણ મારી એ વસ્તુની સ્વીકૃતિ થઈ, પણ મને તો દુઃખ છે. એક્ઝામ્પલ જુઓ, એનું એકદમ સરસ એક્ઝામ્પલ છે કે હું ભણવા બેઠો વેકેશનના દરમિયાન, અને એ વેકેશનના દરમિયાન હું ભણવા બેસું છું, એ વસ્તુમાં મારી સ્વીકૃતિ હતી ને મને તો દુઃખ થયું. તો આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે વેલિડ છે? તો એને થોડું સૂક્ષ્મ રીતે આપણે જોઈએ તો પપ્પાએ કીધેલી વસ્તુને હા પાડવી એ સ્વીકૃતિ નથી. પપ્પાએ જે વસ્તુ કીધી એને હા પાડી, પણ એ હા પાડવાનો નિર્ણય એ મારો પોતાનો છે. એ મેં હા પાડી અને હું બેઠો, એ ક્યાંક ના ક્યાંક એ મેં હા પાડી એ વસ્તુની મારી સ્વીકૃતિ નથી કે મેં હા પાડી છે. એટલે મને દુઃખ છે કે મેં અત્યારે જે હા પાડી કે હું અત્યારે ભણવા બેસું છું, એ મારી જાત પર અત્યારે હું જોઉં તો એ વસ્તુને આપણે સ્વીકૃતિ ના કહી શકીએ, એ અસ્વીકૃતિ છે. સમજોતા કર્યો કે મને પપ્પાએ કીધું ને હું બેસી ગયો ખરો, પણ મને હાલના લેવલે એ વસ્તુમાં રુચિ નથી અને મારે બેસવું પડે છે. એ મારી અત્યારે મારા લેવલે ડિસિઝન લેવાઈ ગયેલું છે, એ મારા ડિસિઝનની વાત છે, એ મારા ડિસિઝનની અસ્વીકૃતિ છે, એમાં દુઃખ છે. જો એ જ વસ્તુમાં અત્યારે મેં ના પાડી હોત કે નહીં મારે ભણવા નથી બેસવું, એના પછી પણ જો મારી એ વસ્તુમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મને એવું ફીલ થાય કે મેં પપ્પાને ના પાડી દીધી અને અંદર એવું ફીલ થયા રાખે કે મેં શું કરવા ના પાડી, એના કરતાં હું બેસી ગયો તો સારું, જો એવું પણ થાય તો એ આપણે ના પાડવાની પણ આપણા અંદર અસ્વીકૃતિ છે, એમાં પણ આપણને દુઃખ જ થાય. આપણે જે ડિસિઝન લઈએ છીએ એ વસ્તુની વાત છે. સામેવાળાને અત્યારે નથી લેવાનું કે ભાઈ સામેવાળો કોઈ પણ વસ્તુ કહે છે તો એ હા પાડે છે ના પાડે છે, એ સ્વીકૃતિની વાત નથી. હા ના પાડવી એ તો માણસની સ્વતંત્રતા એક ડિસિઝન છે, ને જે ડિસિઝન આવે છે એ ડિસિઝન આપણે સમજોતાથી લઈએ છીએ કે સહજ સ્વીકૃતિથી આવે છે, એ વસ્તુ આપણે જોવાની છે સૂક્ષ્મ રીતે. અને સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના હી સુખ હૈ, પછી આપણે આગળ જ્યારે વધ્યા એટલે એમાં પછી એક શબ્દ નવો ઉમેરાયો કે સમાધાન. સમાધાન એટલે શું? હવે અહીંયા આગળ સમાધાનનો શબ્દ જ્યારે આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ થયો એ વખતે પણ આપણે એવું ડિસ્કશન કર્યું કે ગુજરાતીમાં જે સમાધાન છે એ બે માણસો વચ્ચેની અનબન થયેલો મેળ, એ સમાધાનની અહીંયા આગળ વાત નથી થઈ રહી. સમાધાનનો જે અત્યારે જે આખો બેઝ જે આપણે અહીંયા ઊભો કરી રહ્યા છે, એ સમાધાનનો બેઝ એનાથી ઘણો ઊંચો છે. સમાધાન જ્યારે આપણે શબ્દ બોલીએ છીએ ત્યારે આપણે અહીંયા આગળ આ વસ્તુ જોવાની છે કે જાણના પછી જાંચના એટલે નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ અને સર્વેક્ષણ. જે સમાધાનની હું વાત કરી રહ્યો છું એ મારા માટે સાચું હોય તો એ બીજા માટે પણ સાચું હોવું જોઈએ, અને સમસ્ત માનવ જાતિ માટે અને સમસ્ત વ્યવસ્થા માટે સાચું હોવું જોઈએ. આપણે એ લેવલના સમાધાનની વાત કરી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હતા સુવિધાના સ્તર ઉપર કે મારે આઈફોન જોઈએ છે, મારે કોઈ ગાડી જોઈએ છે, અને અત્યારે હું તમને કહું કે મારે આઈફોન જોઈએ છે, મને પપ્પાએ ના લઈ આપ્યો. મારે આઈફોન જોઈએ છે અને મને પપ્પાએ ના લઈ આપ્યો, એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સમાધાન થયું, પણ એટલે અને પપ્પાએ મને બીજો એક નાનો ફોન રેડમીનો લઈ આપ્યો, એક્ઝામ્પલ છે આ તો, બરાબર. તો રેડમીનો ફોન લઈ આપ્યો, એમાં અત્યારે મને એવું થાય છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક પપ્પાના લેવલે એ રીતે સમાધાન થઈ ગયું, પણ મને તો દુઃખ છે. તો સમાધાન બરાબર સુખ કઈ રીતે? તો અહીંયા આગળ આપણે એ રીતે જોઈએ તો મારી જરૂરિયાત આઈફોનની છે, શું બધા જ માણસની જરૂરિયાત આઈફોનની છે? નથી. સુવિધાના સ્તર ઉપર દરેક માણસ, સુવિધાના સ્તર ઉપર કે જિંદા રહેવાના સ્તર ઉપર આપણે દરેક માણસ અગર જોઈએ તો દરેક માણસની જરૂરિયાત અલગ અલગ છે, એટલે એમાં માનવ એક થઈ જ ના શકે, એ પોસિબલ જ નથી. એટલે સમાધાન જ્યારે આપણે શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે એને સુવિધાથી રિલેટ ના કર્યો. આપણે એકદમ ક્લિયર રહીએ કે સુવિધાથી રિલેટ કરવામાં એ સમાધાન શબ્દનો અહીંયા આપણે જે સામાન્ય ભાષામાં વાપરીએ છીએ સમાધાન, એ સામાન્ય ભાષામાં જે વાપરવાનો શબ્દ સમાધાન છે એ અને આ અલગ છે. એટલે અહીંયા આગળ આપણે સ્પેસિફિક ડેફિનેશન આપી રહ્યા છે જે સુવિધા નથી, જે સુવિધાના રેફરન્સમાં આપણે અત્યારે એને રિલેટ ના કરીએ. આપણે રિલેટ ક્યાં કરવાનું છે? તો સુખના રેફરન્સમાં હજી કરી શકીએ, કારણ કે સુખની જરૂરિયાત એ મારી છે, એ મારા પરિવારમાં આજુબાજુ હું પરીક્ષણ કરું છું તો એ બધાની જ છે, અને એ જ રીતે હું જોઉં તો સર્વ માણસની અત્યારે નિરંતર સુખની ચાહત છે અને એ અપેક્ષા છે. આપણી યોગ્યતા નથી અને આપણને મળતી નથી એ વસ્તુ અલગ છે, પણ આપણે સર્વ માણસની, બધા જ માણસોની સુખની ચાહત એક છે. એટલે આપણે હજી સુખના લેવલ ઉપર સમાધાનની આપણે એક વાત મૂકી શકીએ, વ્યવસ્થાના લેવલ ઉપર સમાધાનની વાત મૂકી શકીએ. એટલે સમાધાનની જ્યારે વાત છે ત્યારે એ બધા જ માટે અને બધી જ
માટે આપણે જે લાગુ પડતું હોય એ જ વસ્તુમાં આપણે સમાધાનની વાત કરી રહ્યા છીએ. સમાધાન એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા અંદર સુખ માટે કે દુઃખ માટે અંદર આવતા પ્રશ્નો કે એ પ્રશ્ન મુક્તિ થવી એ જ મેન્ટલ સ્ટેટ છે સમાધાન એક. એટલે એને આપણે સુવિધાથી રિલેટ ના કરીએ. એટલે એ વસ્તુની એક ક્લેરિટી કરવી. પછી ગઈકાલે આપણે એક બહુ સરસ જે કે રાબિયા કી સુઈની આપણે જે વાત કરી, તો એ જે એક્ઝામ્પલ છે એ એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ છે કે હવે આપણે આ ગઈકાલનો આખો કન્ટેન્ટ પત્યો એટલે કન્ટેન્ટના રેફરન્સમાં આપણે ફરીથી એ એક્ઝામ્પલ લઈ લેવું જોઈએ કે એક માજી હતા, એમની સોય ખોવાઈ જાય છે અને એ ત્યાં આગળ ગોતતા હોય છે. તો બીજા 2, 4, 5 જણા અલગ આવે છે અને પછી એ એમને ગોતવામાં મદદ કરવા લાગે છે. અને મદદ કરે છે તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હું તમને કહું કે બધા ગોતવા લાગે છે અને પછી અમુક સમય પછી એક માણસ આવે છે અને પૂછે છે કે બેન તમારી સોય ક્યાં ખોવાઈ હતી? તો એ તો કહેતા હતા એ તો ત્યાં ખોવાઈ છે. તો તમે અહીંયા શેના માટે શોધો છો? કારણ કે અજવાળું અહીંયા આગળ છે એટલે અમે અહીંયા શોધીએ છીએ. આ સુખ અને સુવિધાની વાત એવી છે. જરૂરિયાત આપણી સુખની છે, શોધવું છે આપણે સુખ, પણ આપણે શોધી રહ્યા છે સુવિધામાં કે જ્યાં આગળ સુખ છે જ નહીં, નિરંતર સુખ નથી, ત્યાં આગળ આપણે અત્યારે સુખ શોધી રહ્યા છીએ. એટલે આ જે એક એનાલોગી જે આપણે જોવાની છે એ આ જ વસ્તુની છે કે ભાઈ જે વસ્તુ જ્યાં આગળ નથી એ વસ્તુ આપણે ત્યાં શોધતા રહીશું અને એ નિરંતર શોધતા રહીશું તોય આપણને એ વસ્તુ નહીં મળે. આપણી ઈચ્છા છે પણ આપણને ત્યાં આગળ નહીં મળે કારણ કે એ એડ્રેસ જ ખોટું છે. એટલે એ વસ્તુનું આપણે એક સરસ એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. પછી પછી આમાંય બહુ ક્લિયર થવાની જરૂર છે કે સુવિધા પણ જરૂરી છે અને સુખ પણ જરૂરી છે. સુવિધા માણસના શરીર માટે છે, સુખ એ મારા માટે છે. એવું નથી કહી રહ્યા અહીંયા આગળ કે ભાઈ સુવિધાની જરૂર નથી અને આપણને ખાલી સુખની જ જરૂર છે. સુખની જરૂર તો છે પણ સાથે સાથે સુવિધાની જરૂર પણ છે. એટલે એવી કોઈ વાત નથી કે સુવિધાની જરૂર નથી. સુવિધા છે અને સુવિધાથી સુખ નથી અને સુખથી સુવિધા નથી. સુવિધાથી સુખ નથી અને સુખથી સુવિધા નથી. બંને વસ્તુ અલગ છે અને બંને મારા માટે જરૂરી જ છે. બરાબર છે. એટલે ગઈકાલના બધા ઓલમોસ્ટ પોઈન્ટ્સ કવર થઈ ગયા છે અને આપણે ખાલી એક સ્ટેટમેન્ટ જે છે કે માનવ કા સમસ્ત પ્રયાસ કેવલ और केवल अपने सुख के लिए है. એટલે આપણે અત્યારે હવે એ નિરીક્ષણ પણ કરવાનું છે આપણા અંદર કે શું એવું છે કે નથી. હું જે કંઈ પણ કરું છું, કંઈ પણ નાની મોટી વસ્તુ કરું છું તો હું એ સુખના માટે જ કરી રહ્યો છું કે નથી કરી રહ્યો. અત્યારે આપણે પહેલાં તો ગઈકાલે જ્યારે આપણે સુખની આપણે જ્યારે વાત કરતા હતા તો એમાં ઘણા પ્રશ્નો એવા પણ આવતા હોય છે કે હું અત્યારે જ્યારે સમાજ સેવા કરું છું, હું બીજાને સુખી કરવા માટે અત્યારના લેવલે જાઉં છું, એમાં હું સુખી થઉં છું એ વસ્તુ તો અલગ છે, પણ હું તો એકચ્યુઅલીમાં જઉં છું બીજાને સુખી કરવા માટે. ત્યાં આગળ જ્યારે આ રેફરન્સ આવી જાય છે ત્યારે એ રેફરન્સમાં પણ આપણે એકચ્યુઅલીમાં જોવાની જરૂર છે કે એમાં પણ આપણે આપણી જરૂરિયાત છે સુખી થવાની અને મને એના અંદર તૃપ્તિ મળે છે એટલે હું એ કાર્ય કરું છું. બીજાને એમાં સુખ થાય છે અને બીજો અત્યારના લેવલે એના અંદર એ સુવિધા કાં તો સુખ પ્રાપ્ત કરે છે, એ તો એક બાય પ્રોડક્ટ છે. હું અલ્ટિમેટલી તો જઉં છું મારા માટે જ. આવા ઘણા પ્રશ્નો અહીંયા આગળ સભામાં આપણે જોઈએ તો એ અમુક જગ્યા પર હતા. એટલે આ બધી વસ્તુઓ ક્લેરિટી કરવી થોડી જરૂર હતી. बहुत बढ़िया. आपके इस सहयोग से हम बाग हैं. हाँ जी, सभी को नमस्कार. स्वामी जी को प्रणाम. स्वामी जी से हमारा परिचय लगभग 11 साल पुराना है. जब मैं अध्ययन कर रहा था. आज आवाज में भारी है लेकिन गला ठीक है, लगता है शाम तक ठीक हो जाएगा. हाँ जी, तो बहुत ही आराम से चलने की जरूरत है, बहुत ही धीरे से, क्योंकि देखिए जोर का झटका हमेशा धीरे से ही लगता है. तो कई लोगों को इस शिविर में पहला झटका लगता है कि हम सुख चाहते हैं. अच्छा, हमको पता ही नहीं था. हमको तो ये बताया गया तुम बेवजह सुख के चक्कर में पड़े हो. जबकि हम जन्म से ही सुख के चक्कर में पड़े हैं और ये हमारे में नेचुरल है. मतलब इससे हम कैसे हट सकते हैं, अलग कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते. तो करना क्या है? करना यह है कि सुख को समझा जाए. करना यह है कि सुख अगर हमको निरंतर चाहिए तो निरंतर कैसे मिलेगा उसका तरीके को देखा जाए.
यही उपाय है। हम सुख से भगेंगे कहां जब हमारे में इनबिल्ट है वो। हमारे मैन्युफैक्चरिंग में ही वो चिप पड़ी हुई है सुख वाली तो वो चिप को थोड़ी निकाल के फेंक पाएंगे फेंकेंगे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ड्राइविंग फोर्स ही सुख है। जांच के देखिए, आप ड्राइव ही सुख से हो रहे हैं। जिसको सुख की अपेक्षा नहीं होती कि अब मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है और आगे होने की संभावना भी नहीं है, वो क्या करता है? पंखा और पटरी बाईपास मार देता है। हाँ, हाँ, सुख नहीं है उसको, सुख की संभावना भी, उसको लगता है इस शरीर के कारण ही सारा दुख है। हाँ, उस वक्त मतलब वो डिसीजन लेता है वो हाँ, सुख तो इस की शरीर को खत्म कर दो, दुख खत्म हो जाएगा। उसको लगता है शरीर ही मेरे दुख का कारण है और मुझे तो अब इस जिंदगी में सुख का कोई संभावना नहीं दिखता, इसलिए इस शरीर को ही खत्म करने के प्रयास में लग जाता है। सफल हो जाता है, कभी कभी असफल भी हो जाता है मान लीजिए पटरी टूट गई, रस्सी टूट गई तो कभी कभी बेचारा असफल हो जाता है। तो इसको बाईपास बोलते हैं। बाईपास समझते हैं? जैसे शहर के बाहर जब शहर में ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो एक बाईपास बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर उस भीड़ में घुसे तो आपको जाम में फंसने की संभावना है, तो बाईपास बना देते हैं। तो हमने जिंदगी के ट्रैफिक इतने ज्यादा डेंस कर दिए हैं, हमने अपने को इतना उलझा लिया है, जैसे मकड़ी नहीं जाल बुनते 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 उसमें खुद ही उलझ जाती है, निकल ही नहीं पाती। तो मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं। मैंने ऐसा जाल बुन दिया, ऐसा जाल बुन दिया, सुखी होने के प्रयास में सुविधा के में फंस गया। सुविधा की जो औकात थी, सुविधा की औकात इतनी ही है कि जब जरूरत हो तब चाहिए, जब जरूरत हो तब चाहिए और जब जरूरत हो तभी चाहिए। दोनों मंत्र समझ में आ रहा ना? कि सुविधा जब जरूरत हो तब चाहिए और जरूरत हो तभी चाहिए, अन्यथा चाहिए ही नहीं। हमने क्या किया? सुविधा में ही सुख मिलेगा, सुख की संभावना है, ज्यादा संभावना है, आहार निद्रा भय भय प्रजनन में संभावना है, तो हम इसकी वैरायटी क्वांटिटी में जाते 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 ऐसा जाल बुन दिया कि अब उस जाल से निकल नहीं पाते। तो कुछ लोगों को लगता है इतना किया, इतना मेहनत किया, सब कुछ किया और हम दुखी हैं, इसका मतलब सुख की तो संभावना इस शरीर यात्रा में नहीं है। तो बोले जी संसार क्या है? तो बोले संसार दुख है। ऐसा भी लिखा गया है और बड़े बड़े लोगों द्वारा लिखा गया है कि संसार क्या है? तो संसार दुख का समुद्र है, दुख ही दुख है मतलब दुख है ये, हमने समझा नहीं सुख, तो हमने बोल दिया दुख ही दुख है। तो मेरी जो नेचुरल नीड है सुख, वो क्यों नहीं होगा? होगा ही, हमारा ध्यान नहीं गया। तो ऐसा क्या करते हैं? जिनको लगता है कि, तो जो लोग अपनी जिंदगी को ऐसा उलझा दिए, ऐसा ट्रैफिक जाम कर दिए, अब उनको बाईपास के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता, तो बाईपास मार देते हैं तो एक तरीका ये भी है, करके देख लीजिएगा या जिन्होंने किया वो बच गए उनसे पूछिएगा। तो जो शब्द आया समाधान, तो समाधान का एक सीधा सा आप जैसे वस्तु रूप में समझना पड़ेगा ना। शब्द हो सकता है कि मैं जो समाधान कह रहा हूं, अब आपके पास जो समाधान की पहले से सूचना है, आप में कंडीशनिंग है, वो दोनों मैच ना कर रहे हो। हिमांशु भाई ने काफी उसको खोला है, लेकिन सीधा सीधा कह सकते हैं क्या, क्यों, कैसे का उत्तर ही समाधान है। कोई चीज क्या है, कोई चीज का मतलब प्रकृति क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है,
क्यों है और इसका उपयोग कैसे करना है। मानव क्या है, मानव क्यों है, मानव का उपयोग सदुपयोग कैसे करना है संबंधों में, इन सब का उत्तर ही समाधान है। अब थोड़ा स्पष्ट हुआ? क्या क्यों कैसे का उत्तर ही समाधान है। और जब हम बोल रहे हैं समाधान बराबर सुख, यानी समाधान ही सुख है, तो हमको कहां आके टिकना पड़ेगा? अब समाधान पे ही टिकना पड़ेगा। समाधान पे टिकना पड़ेगा कि नहीं टिकना पड़ेगा? भैया थोड़ा कपड़ा भिगा दीजिए, ये सूखे से साफ नहीं हो रहा। हाँ, ज्यादा जोर लगाएंगे तो बोर्ड गिर जाएगा। थोड़ा गीला कर दीजिए इसको, इस साइड में करिएगा, एक साइड में। तो आकर के हमको टिकना पड़ेगा समाधान पर। अगर हमारे में ये स्थिर हो चुका है समाधान बराबर सुख, सुख निरंतर चाहिए, तो समाधान पूरा चाहिए। यानी कोई चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका पूरा उत्तर चाहिए। तो ये ज्यादा है नहीं। हमको लगता है इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा एग्जिस्टेंस, ब्रह्मांड है कि नहीं, इतनी सारी धरतियां, इतने सारे सोलर सिस्टम, इतनी सारी गैलेक्सी, कैसे समझेंगे हम? मतलब एक आदमी के लिए संभव है? तो देखिए, एक एक इकाई को समझना नहीं पड़ता, नियम को समझना पड़ता है। तो नियम तो कम ही है, नियम समझते हैं। जैसे पदार्थ अवस्था को देखते हैं तो पदार्थ अवस्था की वस्तुएं अलग अलग हैं, मतलब रूप और गुण में अलग अलग हैं, लेकिन स्वभाव धर्म देखेंगे तो एक ही जैसा है। अभी स्वभाव धर्म की चर्चा करेंगे, अभी किया नहीं है। तो स्वभाव धर्म देखेंगे तो एक ही जैसा है। हाँ, वो भी साफ कर दीजिए, वो पूरा, वो तीसरा नहीं, तीसरा रहने दीजिए। तो क्या, क्यों और कैसे का हमको पूरा उत्तर चाहिए। तो ज्यादा है नहीं, ज्यादा क्या है, तो एक्चुअली पूरा अस्तित्व व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? हाँ जी बताइए, पूरा एग्जिस्टेंस व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है। तो हमको क्या समझना है? समाधान किसका है? व्यवस्था का। अव्यवस्था का कोई समाधान नहीं है, और अव्यवस्था को समझने की आवश्यकता भी नहीं है। व्यवस्था को ही समझा जाता है, क्योंकि जीना व्यवस्था में बनता है। जैसे कल एग्जाम्पल ले रहे थे, अभी यहां पे सभा लगी हुई है, पीछे कोई गैस जला के, स्टोव जला के चाय बनाना शुरू कर दे, कुकर की सीटी लगाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्लास ठीक से नहीं चलने दे रहा है। मतलब आपको क्या स्वीकार है? व्यवस्था ही स्वीकार है। अब मैं यहां पर कोई गंभीर चर्चा कर रहा हूं और कोई यहां आके डांस करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? इसको अकल है कि नहीं है? मतलब क्या चर्चा चल रही है, क्या डांस करने लगा, तो क्या करेंगे? भैया थोड़ा बैठ जाओ, बाद में डांस कर लेना, बाहर जाके कर लो, यहां क्लास चल रही है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है सुविधा के अर्थ में। आप ऐसे एग्जाम्पल अपने जिंदगी में देखिए, आपको जब भी स्वीकार हुआ है तो व्यवस्था ही स्वीकार होता है। तो स्वीकृत जो कल बात कर रहे थे, तो जब भी स्वीकार हुआ व्यवस्था ही स्वीकार होता है। आप जब सुख खुशी के पल जो होते हैं वो व्यवस्था वाले ही होते हैं। जैसे आपने किसी से अपेक्षा किया कि मैंने इनको ये काम बोला है और ये ठीक से कर लेंगे, वो करके आ जाते हैं और बताते हैं मैंने कर दिया, अब आप पता भी कर लेते हैं हो गया, तो आप खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि आपको वो स्थिति स्वीकार हो गई है, काम व्यवस्थित हो गया है। तो एक्चुअली व्यवस्था ही स्वीकार होती है, अव्यवस्था किसी को स्वीकार नहीं होती। कितना भी मानव बिगड़ा हुआ हो, कितना भी खराब हो, बिगड़े हुए मानव को भी व्यवस्था ही स्वीकार होती है।
इसीलिए ये कंटेंट ये बोलता है कि मानव अभी भी 51% सही है, मैक्सिमम बिगड़ा है तो 49%। अब आप जानते हैं अगर 51% शेयर किसी के पास हो तो मालिक वही कहलाता है क्यों? तो 51% मानव ठीक है। कैसे आपका अंदाजा लगता है? क्योंकि हर मानव को व्यवस्था स्वीकार्य होती है। कोई बिगड़ा हुआ मानव, ये मतलब अगर उसको स्वीकार हो गया कि मैं बिगड़ गया, गलत रास्ते पे गया, या समाज का आप गलत रास्ते पे हो, तो कभी नहीं चाहता उसकी अगली पीढ़ी इस रास्ते पे आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको व्यवस्था ही स्वीकार होता है। किसी दबाववश, किसी प्रभाववश वो किसी अव्यवस्था में जीने को स्वीकारा हुआ है। स्वीकारा हुआ का मतलब स्वीकृत नहीं है, दबाववश, प्रभाववश समझौता किया हुआ है, कोई सेटलमेंट है। तो 59% मानव ठीक ही है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसा वो चाहा वैसा हुआ नहीं। कैसा चाहा? इस ग्राफ से समझते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, और इस एक्सिस पे लाइए सुख, तो अभी मानव की स्थिति क्या है? तो एकदम से छोटा बच्चा है तो उसको सुविधा भी अपने से नहीं उपलब्ध होती, मतलब उसको रोना पड़ता है तो खाना मिलता है। धीरे 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 माँ को लग जाता है इसको कब भूख लगेगी। तो शुरू में उसको अपनी सुविधा के लिए संघर्ष है, लेकिन धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति आती है कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, वो सुखी होता है, सुखी होता है, सुखी होता है, खुशी रहता है, मस्ती में रहता है, विश्वास से भरा रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, युवावस्था में आता है, खूब बढ़िया नाचता है, गाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो पार्टियां करता है और मजे में रहता है। उसी बीच में उसको कोई जॉब मिल जाती है, कोई नौकरी मिल जाती है, कोई व्यवसाय शुरू कर देता है। तो जॉब, नौकरी और व्यवसाय यहाँ आने पर उसको लगता है कि अब सुविधा के मामले में मैं स्वावलंबी हो गया हूँ, मतलब अब मुझे अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वावलंबी हो गया हूँ। ऐसे भाव के साथ होता है वो क्षण उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी का क्षण होता है, जब पहली तनख्वाह मिलती है जब कोई आप व्यवसाय शुरू करते हैं, उससे जो पहली कमाई होती है वो सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है। और इसी समय इसकी शादी हो जाती है, युवा की, पुरुष हो या महिला हो, शादी हो जाती है। वो भी शादी होना घटना के रूप में बहुत अच्छा पल होता है, बहुत खुशी का पल होता है। तो ये एक अवस्था होती है जिसमें वो मैक्सिमम सुख पे होता है। इसके बाद मत पूछिए क्या हुआ, इसका ग्राफ डाउन होना शुरू होता है। गिला, शिकवा, शिकायत, अतृप्ति, दुख, बेटा नालायक है, बेटी भी नहीं पूछती, बहू तो एकदम ही खराब है, सास भी खराब है, ऐसे करते करते हम लोग नेगेटिव में चले जाते हैं। और निधन के वक्त हम नेगेटिव में जाते हैं दुख से भरे हुए। ज्यादातर, अधिकतर मानव की यही कहानी है। ये क्या चीज दिखाता है ये ग्राफ? ये ग्राफ ये दिखाता है कि हम जो कुछ सोच करके अपनी सुविधा के अर्थ में पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, संस्कार, जो कुछ भी हुआ था, जब जीने का टाइम आया तो काम नहीं आया। जीने का टाइम यही आता है जब आप बड़े हो गए हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, नौकरी, जॉब, व्यवसाय में शादी विवाह करके जीना यहाँ से शुरू होता है।
जीने का वक्त जब आया तो आप डाउनफॉल हो गया आपका, निगेटिव में जाने मतलब आपके सुख घटता गया घटता गया घटता गया, अब बुजुर्ग हो गए और घट गया, बुजुर्ग हो गया घट, नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब है कि शिक्षा संस्कार जो सोच के दिया गया था उसमें ही गड़बड़ी थी। अच्छा, ये ग्राफ पढ़े लिखों का ऐसा होता है कि बिना पढ़े लिखों का भी होता है? कोई मतलब नहीं है, सबकी हालत एक ही जैसी है। कितनी भी बड़ी डिग्री आपकी हो गई हो, कितनी भी बड़ी डिग्री आपकी हो गई हो, धन्यवाद भैया, वो डिग्री मायने नहीं रखती। जैसे मान लिए समर्थ डायमंड एक ब्रांड है, तो अब बढ़िया डिब्बा आया और उस पर लिखा समर्थ डायमंड, हम बड़े खुश हो रहे हैं, समर्थ डायमंड देखिए कितना अच्छा डिब्बा, कितनी मतलब ब्रांड है ये समर्थ डायमंड। और जब डिब्बे को खोला अंदर तो उसमें से पत्थर निकला हीरा निकला ही नहीं। वैसे हम सब पढ़े लिखे लोगों की दशा है, पीएचडी, एमए, बीएड, एमएड, डबल पीएचडी। एक दिल्ली में एक टीचर हैं, वो 6 सब्जेक्ट से पीजी किए कि मेरा सम्मान, अब बताते भी हैं मैं 6 सब्जेक्ट से पीजी करता हूं, लेकिन उनका पत्नी से एक दिन भी नहीं पढ़ता किसी सब्जेक्ट में आया ही नहीं है तो पढ़ाई लिखाई क्या है? पैकिंग बढ़िया है, अच्छी कंपनी की लग गई आपके, पट्टा पहन लिए, लेकिन डिब्बा खोलने पे अंदर से सब लोकल माल निकलता है, सब नकली माल निकलता है तो कोई मुद्दा ही नहीं है हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्री है। देश की डिग्री है या विदेश की डिग्री है? तो हम लोग अध्ययन शिविर हापुड़ में चलाते हैं, तो उसमें एक बहन है गुड़गांव की, वो गायनी की डॉक्टर हैं, हालांकि अब वो डॉक्टरी का काम नहीं करती, छोड़ दिया उन्होंने। तो उनके हस्बैंड जो है वो, उनके घर में कई लोग डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड के घर में, तो उन लोगों की विदेश की डिग्रियां थी, कैम्ब्रिज वगैरह की। तो इनको बड़ी पीड़ा रहती थी कि मेरे पास कोई विदेश की डिग्री नहीं है। अच्छा, आजकल डॉक्टर के नाम के आगे डिग्रियां लिखी रहती है ना, तो किसी को पता भी नहीं रहता, लेकिन बोलते हैं ये डॉक्टर अच्छे हैं। क्यों? देखिए कितनी सारी डिग्री है, FACP, MRCP, CP, FCP, पता नहीं क्या क्या लिखा रहा था, हम उसका अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन हम देखते हैं देखिए इतनी डिग्रियां। तो उन्होंने, अच्छा ब्रैकेट में लिखा रहेगा UK, ब्रैकेट में लिखा रहेगा USA तो हमको लगेगा बड़े डॉक्टर हैं। तो उनको यही फीलिंग आ गई कि हम बड़े डॉक्टर नहीं हैं, मेरे पास कोई विदेश की डिग्री नहीं है, और बार बार वो दुखी होते थे। तो उस बहन ने कहा इसमें दुखी होने की क्या इतना दिक्कत है, आप भी ले लो। तो इन्होंने अप्लाई किया और जैसे भी किया वहां पे एडमिशन तो हो ही गया, पैसा ही तो लगता है और क्या। भाई विदेश की डिग्री पाने के लिए क्या चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके पास पैसा होनी चाहिए। हमारे साथ हैप्पीनेस में एक काम करती थी, युवा लड़की थी, अभी जल्दी उसने UG किया था और वो काम करती थी। उसके पिताजी को लगा कि ये कहीं बाहर की डिग्री ले, तो फिर हार्वर्ड की डिग्री लेने गई है इस समय। वो बता रही थी 32 लाख रुपए 1 साल का फीस है और लगभग इतना ही रुपया रहने खाने का है। तो हो गया, तो उनका भी एडमिशन हो गया, चले गए, और 2 साल 1.5 साल 2 साल जो भी रहना था, तो ये भी चली गई साथ में, बहन भी, उनकी वाइफ, बच्चे भी छोटे थे, चले गए। तो वहां जब डिग्री ले लिए, जब ये पढ़ रहे थे तो ये क्या करेंगी, इनके पास अपना मेडिकल की डिग्री थी, तो ये अपना वहां प्रैक्टिस शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन प्रैक्टिस शुरू करते हुए इनको लगा कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब डॉक्टर तो बहुत हो गए हैं, ठीक है, और डॉक्टर का एटीट्यूड भी ठीक नहीं है, तो आदमी तो जीना चाहता है, ये उनको क्लिक हो गया था। तो आजकल दूसरे देशों में एक सिस्टम चला है, लाइफ कोचिंग करते हैं वो, माने जीना सिखाते हैं।
काउंसलिंग होती है। तो वो लाइफ कोच जो है, नामी गिरामी कुछ दुनिया में 4-5 लोग हैं, मैं नहीं हूं उसमें। तो वो लाइफ कोच के संपर्क में आई और उन्होंने लाइफ कोचिंग सीख लिया। साथ में इनकी डिग्री मिलती रही। वहीं उन्होंने तो 8 साल वहां रह गए लोग। जब डिग्री मिल गई तो इनसे पूछे कि अब चला जाए, अब तो आपको संतुष्टि हो गई। बोले कुछ लग नहीं रहा हमको, कुछ नया चीज मिल गया है। लग नहीं रहा हमको कोई बड़ा चीज मिल गया है। तो वही जो कल बोला था कि जब तक कोई चीज हमको मिली नहीं रहती है तब तक हमको उसमें रोमांच रहता है। जब वो चीज मिल जाती है तो हमको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती। तो उनको भी लगा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जब डिग्री लेके 8 साल बाद वापस आ गए तब भी वो कह रहे हैं मुझे प्रोफेशन में कुछ भी नहीं लग रहा कि मैं कुछ नया हो गया हूं, या मेरे यहाँ कोई ज्यादा मरीज आने लगे और मैं कोई बहुत विशेषज्ञ गिना जाने लगे, क्योंकि वो तो डिग्री सबके पास है, यूके वाली, यूएसए वाली। तो कुल मिलाकर के डिग्रियां इकट्ठा करते रहिए जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए पढ़ाई तो पूरा ही करना चाहिए, पढ़ाई बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो बोल देंगे, जीवन विद्या वाले बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। क्यों प्रिया? पढ़ाई लिखाई का एक उपकार है, एक उपकार जो हुआ है एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम का, वो सबसे बड़ा उपकार है कि बच्चे कम से कम मानना से तर्क की तरफ बढ़े हैं। जान रहे हैं ऐसा नहीं है, जानने की तरफ नहीं बढ़े हैं, तर्क करने लगे हैं। हमारे जमाने में कोई तर्क नहीं, कह रहा हूं मानो। तो हमारी पीढ़ी मान के जी है, ऑप्शन ही नहीं था। खैर हमारी वो अंतिम पीढ़ी है जिसने अपने माता पिता की बात मानी, मतलब अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी थे, अब अपने बच्चों के लिए आज्ञाकारी हैं। हाँ हम अपने माता पिता के लिए भी आज्ञाकारी थे और अब अपने बच्चों के लिए भी आज्ञाकारी हैं। अब आगे जो पीढ़ी आएगी वो माता पिता की आज्ञाकारी नहीं होगी, वो केवल बच्चों की आज्ञाकारी होगी। क्यों हिमांशु जी? देखिए किसी न किसी को टारगेट करना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर के क्या है कि ये जो पढ़ाई लिखाई है जिसके लिए हम पूरा समय लगाते हैं, लगाना चाहिए। अभी हम मानव तीर्थ एक छत्तीसगढ़ में जगह है, लगभग 250-300 एकड़ में एक कैंपस डेवलप हुआ है। एक नदी है वहाँ, शिवनाथ नदी, उसके किनारे। तो वहाँ हम युवाओं को लेते हैं अध्ययन के लिए कि आपकी पढ़ाई, लेकिन शर्त रखे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई होनी चाहिए। किसी माता पिता को, बच्चे को लगता है कि 12th तक ही हमारी पढ़ाई पूरी हो गई तो 12th करके आ जाए। किसी को लगता है ग्रेजुएशन करके पूरी हो गई, ग्रेजुएशन करके आ जाए। किसी को लगता है पीजी पीएचडी करके पूरी होगी तो वो करके आ जाए। लेकिन अपने अंदर एक टीस लेके ना आए कि मैं पढ़ा नहीं, मैं और आगे की डिग्री नहीं लिया। तो बढ़िया से जितनी डिग्री लेनी उतनी डिग्री लेके आ जाइए। वो बच्चे आते हैं, अभी वहां पे लगभग 22 बच्चे हैं। वो बच्चे आते हैं तो उनको 1 साल हम इस दर्शन को, मध्यस्थ दर्शन को पढ़ाते हैं। जीवन विद्या जिसका परिचयात्मक प्रस्तुति है, उसके पीछे जो फिलॉसफी है उसका नाम है मध्यस्थ दर्शन। तो 1 साल तक हम उसका अध्ययन कराते हैं। लेकिन केवल अध्ययन नहीं होता, अध्ययन के साथ अभ्यास भी होता है। खेत में, गौशाला में, उत्पादन में, प्रोसेसिंग में, बहुत सारा काम है वहाँ। खेती भी होती है, गौशाला भी है, प्रोसेसिंग भी होती है। जो खेती में उपज होता है उसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं। एक स्कूल भी बगल में चलता है प्रेरणा विद्यालय नाम से, उस विद्यालय में भी अपनी भागीदारी दीजिए, यानी शिक्षा संस्कार में भी जुड़िए। एक वहीं पे स्वास्थ्य संयम केंद्र है, तो कुछ नेचुरोपैथी, कुछ आयुर्वेद की चीजें भी सीखिए। तो ये मतलब स्किल डेवलपमेंट का भी काम है वहाँ। तो हम कहते हैं लेकिन पढ़ाई की टीस लेके मत आइएगा, पढ़ाई पूरी करके आइए। तो 1 साल इस दर्शन का अध्ययन करते हैं, अगले साल
किसी एक दो और दर्शन का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो जिस बच्चे को जो इंटरेस्ट आया, मान लिया किसी को बुद्धिज्म में इंटरेस्ट है, किसी को जैनिज्म में है, किसी को सांख्य में है, मतलब भारतीय दर्शन है, सांख्य, वैशेषिक, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन जिसमें वेदांत वगैरह आते हैं, तो उसको करेंगे। फिर दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और तीसरे साल में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उनकी मर्जी है, वो मानव तीर्थ में रह सकते हैं, शादी करके रह सकते हैं, मर्जी नहीं है तो बाहर जाके रह सकते हैं। और उसमें आपको सूचना दूं कि 22 में से 7 बच्चे गुजरात के हैं। 22 में से 7 युवा गुजरात के हैं और सातों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। इंजीनियरिंग की डिग्री है सबके पास, कोई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ऐसे के हुए लोग हैं। नीरजा उमरा वाला, मनन, गुंजन, मतलब नाम भी याद है मुझे अमृत, ये सब बच्चे, नीलेश, ये सब बच्चे गुजरात के हैं। तो अभी मैं मानव तीर्थ का नाम ले रहा हूं और गुजरात के ही 7 बच्चे वहां पे हैं। इसका मतलब गुजरात में विद्या का काम पहले से चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो इस ग्राफ की चर्चा कर रहा था, जहां से निकल के आया पढ़ाई लिखाई, ये पढ़ाई लिखाई ठीक है, करना चाहिए, डिग्री लीजिए, लेकिन उसके साथ अगर ये शिक्षा संस्कार वाला काम नहीं चला तो ये आकर के ऐसा होगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं, जो सुख हमको मिला है अब इसकी निरंतरता हो जाए, यानी सुख हमारे में बना रहे, वो गिरे नहीं। हम सभी ऐसा चाहते हैं। इसके लिए अपनी जिंदगी को 20 साल शिक्षा व्यवस्था में लगाते हैं, परिवार में जीते हैं। तो कुल मिलाकर के समाधान क्या है उसको देखना पड़ेगा। तो समाधान बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बस हमारा ध्यान चला जाए। व्यवस्था को ही समझना है। तो व्यवस्था कितने स्तरों पे है? तो पहले स्वयं के स्तर पर है, स्वयं के स्तर पर, स्वयं के स्तर पर, लेवल, स्तर माने लेवल, सेल्फ के लेवल पे व्यवस्था को समझना। दूसरा, परिवार के स्तर पर। तीसरा, समाज के स्तर पर। चौथा, जो यहां चित्र बना है उसी को यहां बुलेट में लिख रहे हैं, प्रकृति के स्तर पर। और पांचवा, अस्तित्व, होल एग्जिस्टेंस। इतने ही समझ है, जिसको भी पूरी समझ होगी इतना ही होगी। तो आगे अब हम जो काम बात करेंगे 5 दिन, वो इन्हीं 5 पे करेंगे। क्योंकि हमको समाधान चाहिए। समाधान क्यों चाहिए? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। हम सुखी कितना होना चाहते हैं? निरंतर सुखी होना चाहते हैं। तो समाधान कितना चाहिए? पूरा चाहिए। पूरा समाधान क्या है? यही है। इससे ज्यादा क्या समाधान होगा बताइए? अभी जो शिक्षा है उसमें प्रकृति के स्तर पे तो बात हुई है, समाज के स्तर पे टुकड़ों में हुई है, फ्रैक्चर्ड हुई है, परिवार के स्तर पे भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में फ्रैक्चर्ड ही है, स्वयं के स्तर पे तो बात ही नहीं है। जबकि पूरे को समझते हुए अगर स्वयं को नहीं समझे
तो क्या जीना तो हमको है जीना तो मुझे है। परिवार में कौन जिएगा? मैं जीऊंगा। समाज में कौन जिएगा? मैं जीऊंगा। प्रकृति के साथ कौन जिएगा? मैं जीऊंगा। अस्तित्व में कौन जिएगा? मैं जीऊंगा। और मैं खुद को आज तक समझा ही नहीं, शिक्षा में उसकी व्यवस्था भी नहीं है। तो स्वयं को समझूंगा तो मैं अस्तित्व को समझना मेरे लिए सार्थक होगा। स्वयं को नहीं समझूंगा तो अस्तित्व को समझना सार्थक होगा ही नहीं। मेरी भागीदारी मुझे पता ही नहीं चलेगी। मैं धक्के खाते फिरूंगा, धक्के खाते खाते मुझे ही धक्का लग जाएगा। इतना ही काम है। तो जब हम दिल्ली में 2 कैरिकुलम लेकर के आए, एक हैप्पीनेस कैरिकुलम जो बच्चों के लिए और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, मतलब जो रूपांतरण वाली समझ है उसके लिए जो एक गहन सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है। कंटेंट यही है, नाम केवल अलग अलग रखा है। वो टीचर ट्रेनीज के बीच में लाए वो कोर्स, जो डीएलएड कर रहे हैं बच्चे, जो आगे टीचर होने वाले हैं। तो हम लोग एक कोर्स बनाने का सोच लिए। अब सरकारी सिस्टम में आप कोई कोर्स बनाने का सोचते हैं तो आपकी मनमानी थोड़ी चलती है कि आपके मन में आया, सपना आया, आप कोर्स बना दें। तो सरकार बोली इसका जस्टिफिकेशन क्या है? किस सरकारी डॉक्यूमेंट में यह प्रस्ताव किया गया है? अगर आज तक के किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में प्रस्ताव नहीं किया गया है तो इसको हम कैसे स्वीकारें? मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर काउंसिल इसको कैसे पास करेगी? डॉक्यूमेंट कहां है? हमने कहा पूरा डॉक्यूमेंट है। क्योंकि देखिए मैं 20 साल से शिक्षा में काम कर रहा हूं, तो मुझे तो सब कागज पत्र पता है। तो हमने कहा पूरा डॉक्यूमेंट है। बोले कहां है? हमने कहा NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये 2008 में आया था डॉक्यूमेंट और 2009 से लागू हुआ था। उसमें टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो बातें उसमें लिखी गई हैं, और उसी को पूरा देश के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं। सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो रेगुलेट करती है उस बॉडी का नाम है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दिल्ली में हेड ऑफिस है, बाकी रीजनल ऑफिस बहुत जगहों पे। यहाँ का रीजनल ऑफिस अजमेर में होगा। तो वो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है 5वां चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, बताया है कि टीचर सेल्फ को समझे, स्वयं को समझे। और उसमें लिख रहा है कि टीचर एक्सप्लोर योर सेल्फ इन क्लासरूम, एक्सप्लोर योर सेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लोर योर सेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर। ऐसा लिखा हुआ। मतलब हम ही ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब शिक्षक जो है वो स्वयं के खुद को एक्सप्लोर करे, परिवार मतलब क्लासरूम के स्तर पे, बच्चों के स्तर पे, प्रकृति के स्तर पे, समाज के स्तर पे। फिर नीचे विधि लिखा है कैसे होगा। तो उसमें लिखा है इसमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की मदद ली जाए। वो एक लाइन ने बंटाधार कर दिया। अब किसी भी धार्मिक संस्था की मदद आप कैसे लेंगे? भाई एक धार्मिक संस्था की मदद लेंगे, दूसरा धार्मिक संस्था विरोध करेगा, वो चलेगा ही नहीं। यानी सरकार ने शुभकामना व्यक्त कर दी, ये पढ़ना तो है, लेकिन उसका कोई कंटेंट नहीं बनाया। क्यों? जिन्होंने ये लिखा उनके पास ही योग्यता नहीं थी उसको बनाने की तो कंटेंट नहीं बनाया। अब ये तो वो जाने। जैसे दिल्ली में मैं जब रहता था, शुरू में गया, तो मैं जहां रहता था मेरे ऊपर एक डॉक्टर रहते थे बच्चों के,
तीरथ राम हॉस्पिटल है, उसमें वो डॉक्टर थे। तो अक्सर बगल में मेट्रो थी, तो वो भी मेट्रो में बैठते थे, हम भी मेट्रो में बैठते थे दरियागंज जाने के लिए। उनको कहीं तीरथ राम जाना था, सिविल लाइंस। तो एक दिन मैं बैठा गया तो देखे कि ये 3-4 लोग एक जैसा ही ड्रेस पहने, कोट वोट टाई वाई लगाए हुए बैठे थे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आज एक जैसा क्या बात है? तो बोले आज हम लोग का सेमिनार है कोई। हमने कहा अच्छा, अच्छी बात है, सेमिनार करना चाहिए, सेमिनार होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी जो है, जो कुछ हमने पढ़ाई किया है उसके अलावा भी कुछ बातें हो जाती हैं। तो हमने कहा क्या आपके किसी सेमिनार में ये भी बात होती है कि आदमी स्वस्थ कैसे रहे? जैसे डॉक्टर क्या करता है, आपका बीमार होना जरूरी है तब डॉक्टर आपके लिए मददगार होगा। बोलते हैं जी बीमार हो के आओ, इलाज हम करेंगे, लेकिन आप बीमार ना हो ये उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो हमने कहा आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो, आप एनाटॉमी पढ़ते हो, मतलब आपको शरीर क्रिया विज्ञान पूरी पता है, आपको पूरा आहार विहार आपके विजुअल है, मतलब आपको बिल्कुल ही दृश्यमय है। तो आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप कैसे खाओ पियो रहो कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, तीनों लोग बोलते हैं बाबा रामदेव बताएंगे। तो हमने कुछ चीजें मान ली है, अब स्वस्थ रहना कोई दूसरा बताएगा, डॉक्टर नहीं बताएगा। तो हमने कहा आप क्या बताएंगे? बोले आप बीमार हो के आएंगे, हम इलाज करेंगे। तो वही हाल है। अब उसमें कंटेंट तो डाल दिया, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, लेकिन कंटेंट बनाने वाला कोई है ही नहीं सिस्टम में। तो हम वो कंटेंट बना करके रखे, और उसमें कोई धर्म नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई समुदाय नहीं, क्योंकि आज तीसरा दिन है, बात हो रही है, इसमें किसी पूजा पद्धति, किसी कर्मकांड, किसी धर्म की, किसी किताब की, किसी शास्त्र की, किसी महापुरुष की बात हुई है। तो सच्चाई जैसी है वैसी कही जाए, इसीलिए पहले दिन बोला था दर्शन का मतलब क्या है, जो चीज जैसा है उसको वैसा ही देख लिया जाए और संवाद पूर्वक देख लिया जाए। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं होती कि किसी का नाम लाया जाए, कोई किताब बीच में लाई जाए। तो हमने बना के रख दिया। फिर हैप्पीनेस कैरिकुलम का जस्टिफिकेशन, तो हमने एनसीएफ 2005 रख दिया। हापुड़ वाले हॉल में भैया तो गए हैं, और भी कोई गए होंगे, हमने एनसीएफ 2005 भारतीय संविधान सब चिपका के रखा कि जो बात हम कर रहे हैं वो बताओ इससे अलग है, संविधान की मूल भावना से अलग है, एनसीएफ से अलग है। तो 5वें 6वें दिन बोलते हैं जी यही है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो उसमें कामना व्यक्त की गई है, हम उसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं, वो केवल शुभकामना व्यक्त कर दी है। तो बोले हैप्पीनेस कैरिकुलम का, तो हमने एनसीएफ 2005, क्योंकि उसी आधार पर अभी तक शिक्षा व्यवस्था है। उसमें एक चैप्टर है एजुकेशन फॉर पीस एंड हार्मनी, उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे उत्सव पूर्वक जीना सीख जाएं, इसके लिए शिक्षा है। और आगे भी लिखा केवल कमाना खाना सीख जाएं शिक्षा नहीं है, कमाना खाना भी है, लेकिन उत्सव पूर्वक जीना सीख जाएं, इसको शिक्षा बोले। हमने उसको टूल बनाया, उस किताब को बढ़िया फ्लैग लगाया एनसीएफटी, एनसीएफ 2005, और ले जाकर रख दिया। एक बार में ही पास हो गया। तो डॉक्यूमेंट है, शुभकामना व्यक्त की गई है। जब पहला एनसीएफ आया था सन 1975 में, तो उसमें भी मूल्य शिक्षा की बात की गई थी। उसमें भी कहा गया था आदमी साथ में कैसे जी सके, इसकी बात की गई थी। तो कुल मिला के अगर स्वयं को नहीं समझते हैं तो ये किसी को समझ नहीं पाएंगे। हमको जीना है इनके साथ, परिवार में मुझे जीना है, और मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। समाज में मुझे जीना है और मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। क्या नहीं जानता हूं? तो यहां जो 3 चीजें थी,
ये सब के साथ यही प्रश्न लगेगा, मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं और मेरा जीना कैसे होगा। परिवार क्या है, परिवार क्यों है, परिवार में जीना कैसे होगा। समाज क्या है, समाज क्यों है, समाज में जीना कैसे होगा। प्रकृति क्या है, प्रकृति क्यों है, प्रकृति में जीना कैसे होगा। अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्यों है, अस्तित्व में जीना कैसे होगा। जब भी उत्तर ढूंढने जाएंगे इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर, इसीलिए बोला इन्हीं तीनों को मिला के बोलते हैं समाधान, जो उधर लिखा है। अब समाधान क्लियर हो गया। तो अभी क्या कार्यक्रम बनता है, आगे शिविर कैसे चलाया जाए, यही 5 को समझना है। यही शिविर का कंटेंट है। तो शुरुआत करेंगे स्वयं के स्तर पर व्यवस्था को समझना। इसको यहां से मिटा दें। थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं कि कैमरे में आ जाए और जो आगे बैठे हैं उनको भी दिख जाए, क्योंकि सभा जो है ना ये हमारे त्यागराज स्टेडियम टाइप लग रही है। हम लोग त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में है, तो उसमें एक साथ 3500 4000 लोगों को बिठाते हैं, और ऐसे ही एक किनारे मंच रहता है, 3-4 बोर्ड रहते हैं और हर तरफ लोग बैठे रहते हैं। तो कुछ शिक्षक संगठनों ने विरोध किया, बोले अब स्टेडियम में पढ़ाई होगी। माने स्टेडियम खेलने की जगह है, अब आप वहां पढ़ाई करते हो, तो खेलना भी किस लिए पता ही नहीं है। तो खेलना किस लिए, इसलिए उसको समझना पड़ता है, उसके लिए स्टेडियम को यूज करना पड़ता है। तो आप कभी YouTube पे देखिएगा एंश्योरिंग वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, त्यागराज स्टेडियम, तो आपको पूरा दृश्य दिखेगा। पूरा सेशन इंटरैक्टिव होता था। जैसे सोम भाई रखते थे प्रस्ताव को, या हम में से जिसको भी जिम्मेदारी मिलती थी, रख दिया, 1 घंटे बात किए, उसके बाद लगभग 40-50 माइक रहते थे। तो अलग अलग सेक्टर में जहां से, अच्छा सारे माइक ऑफ रहते थे, ऑफ रखना जरूरी होता था। फिर जहां से हाथ उठाया उस एरिया का माइक यहां से ऑन होता था। हाँ, नहीं तो कई एक साथ बोलेंगे ना, फिर 4000 में कैसे संभालेंगे आप। तो इंटरैक्टिव सेशन होता था, आप कभी भी यूट्यूब पे देखिएगा। उसके जीवन विद्या शिविर भी लिखेंगे त्यागराज तो पता चल जाएगा, लेकिन वो शुरुआत में हम लोग इस नाम से शुरू किए थे, एंश्योरिंग वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। हाँ जी, तो शुरुआत कहां से करेंगे, स्वयं में व्यवस्था को समझना। अब जीवन विद्या शिविर शुरू हुआ है। लेकिन जितनी बातें पहले हुई हैं, अगर वो ना हो और डायरेक्ट पहले दिन ये शुरू कर दे तो एक फाउंडेशन न्यू खोदनी पड़ती है। पहले मकान बनाना शुरू करना और क्या करना पड़ता है, पहले गड्ढा खोदना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है सुविधा बराबर सुख नहीं है। आप बोलते हो जी है, हम कहते नहीं है, आप बोलते हो है, अरे है, हम बोलते हैं जी नहीं है हम बोलते हैं जितना चाहते हो उतना नहीं है, आप निरंतर चाहते हो नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, पहले गड्ढा खोदते हैं गड्ढा खोदने के बाद फिर उसमें मटेरियल डालते हैं, खंबा खड़ा करते हैं। जब फाउंडेशन तैयार हो जाता है तब मकान का बिल्डिंग ब्लॉक लगाना शुरू करते हैं। तो अब फाउंडेशन तैयार हो गया है, अब शिविर शुरू होगा। इसको किया जाए, स्वयं को समझा जाए। जय, हाँ, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। चलिए, तो स्वयं को समझने से शुरुआत हम करेंगे, अपनी आवश्यकताओं से ही करेंगे।
मेरी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। जब क्या क्या है बोल रहे हैं तो बाकायदे नाम लिख के बताइए क्या क्या है। और इसमें माइक बहुत नहीं दौड़ पाएगा, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आ जाए, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी आएंगी। बोलिए, मेरी आवश्यकताएं। रोटी, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, तो जितने भी शिविर हुए पहले यहीं से शुरू होता है। अब रोटी कितने तरह की? आपका केवल रोटी से काम चलेगा कि पूरी भी चाहिए, पराठा भी चाहिए? हाँ, तो इसमें वैरायटी। और आगे रोटी कपड़ा मकान के बाद? हाँ जी। हवा, पानी, हाँ, नमस्कार भैया जी। हर रोज इच्छा, शिक्षा, शिक्षा हर रोज कर्म करना। कहाँ है? यस, हर रोज कर्म करना। नहीं, चाहिए क्या, आवश्यकता क्या है? कर दवाई दवाई मेडिसिन। दवाई, हाँ। सुविधा, अपनी जरूरतें बताइए, सुविधा मत बताइए। सुविधा क्या है? सुविधा बधा हुआ लड्डू है। उस लड्डू को तोड़ के बताइए। पैसा, हाँ ठीक, ऐसे बताइए असली चीज। नकली चीज मत बताइए। संबंध, हैं? संबंध, संबंध, समझ, संबंध, रिलेशनशिप। संबंध, हाँ, अच्छा। मशीनों, और संबंध में क्या चाहिए? विश्वास, देखिए कुछ कुरेदना पड़ता है। और सुख, सम्मान भी। और बताइए। पद, सुख, 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 पद, पद, गाड़ी, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान ही ना। और आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, ये तो सम्मान का हिस्सा हो गया। लिख भी देते हैं आत्मसम्मान। हाँ, हेलो, एक दूसरे का साथ। मकसद, एम, उद्देश्य। हाँ, चलिए, उद्देश्य चाहिए, उद्देश्य होता है। हेलो, मतलब कोई रियलिटी हो। उद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य है वो बताइए। वो रियलिटी होनी चाहिए ना। मोबाइल, जैसे सम्मान बोल रहे हैं तो सम्मान रियलिटी है। उद्देश्य बोल रहे हैं तो कोई रियलिटी नहीं पकड़ में आती। और गाड़ी हो गया, कौन? सूर्य प्रकाश, खेत बाड़ी, अच्छा खेत बाड़ी। अनुशासन, सूर्य का प्रकाश, अनुशासन, अच्छा। पानी, पानी आ गया। शांति, और एसी, टीवी। आप सही रास्ता पकड़े हैं। आप समझ, समझ, रियलाइजेशन, हैं? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, वो समझ ही हुआ ना। अनुभव, रियलाइजेशन माने अनुभव, ठीक है। अनुभूति, अनुभूति, ठीक है। मोबाइल लिख दिए। कौन वाली मोबाइल? आपका दूसरा है? और
लॉयल्टी, प्रेम, प्रेम, प्रेम वो लव वाला ना। हाँ। नहीं, हमको लगता प्रेम नाम का कोई व्यक्ति होगा जो आपको चाहिए। इंटरनेट, मैं बोलवा नहीं। हाँ जी, लॉयल्टी, लॉयल्टी, तेज बोलो थोड़ा। लॉयल्टी, लॉयल्टी, ये क्या होती है? वैल्यूज, वैल्यूज, हाँ, मूल्य। तो वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, विश्वास, सम्मान, सुख, प्रेम, शांति, मूल्य लिख दे रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। और बस खत्म कोटा। नियंत्रण, आनंद, नियंत्रण, ये तो नियम ही है ना, नियंत्रण। जमीन, खेती बाड़ी लिख दिए, इसके अलावा मकान बनाने के लिए। अच्छा सा ऐप, ऐप चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा? व्हाट्सएप कैसे चलेगा? फेसबुक कैसे चलेगा? हेलो हेलो हाँ जी, दया करुणा। करुणा, अच्छा। और एक दूसरे का सहयोग। सहयोग, इधर एक बहन का बोलना है नींद, 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 हाँ नींद चाहिए। सुरक्षा, सुरक्षा, कुर्सी, कुर्सी, हाँ जी, कौन बोले? कुर्सी वाली ना, जिसके लिए झगड़े होते कि हैं। बड़ी वाली? बड़ी वाली। बड़ी वाली, हाँ। शांति, वैसे ये भी बड़ी है। एक आदमी के बैठने से बड़ी है। हाँ जी, शांति आ गया, ये आ गया शांति। इसी शांति की बात है कि तुम्हारी कोई दोस्त है शांति। इक्वालिटी, समानता, सेवा, सेवा, काम वाली, न्याय, तो एक परिवार में, हाँ न्याय लिख के एक घटना सुनाते हैं, इन्होंने अच्छा बोल दिया। एक परिवार में विवाह हुआ एनवायरमेंट, बेटी का, हाँ एक मिनट, अभी और पूछ रहे हैं। बेटी का विवाह हुआ तो बढ़िया से विवाह संपन्न हुआ, अतिथियों का अच्छा सत्कार हुआ, जो आए उनको खाना पीना बढ़िया हुआ, बेटी को खूब ज्यादा उपहार भी दिया गया, मतलब अब दहेज नहीं बोलेंगे। तो उपहार भी दिया गया, जितनी मतलब लगता था, ज्वेलरी, गाड़ी, सब कुछ दिया गया, और जितने भी सामान होते हैं उपयोग के सब दिए गए। उसके बाद विदाई होने लगी। अब बेटी रोए जा रही है, माँ कह रही है बेटा कोई बात नहीं, नजदीक ही हो, मिल लेंगे, और आजकल तो वीडियो कॉलिंग हो जाती है, टेलीफोन है ही है, गाड़ियां भी आजकल तेज हो गई हैं, रोड भी अच्छे हो गए हैं, मिलते रहेंगे। तो बोलती नहीं नहीं माँ, आपने मुझे एक चीज नहीं दिया। बोले अरे सब चीज दिया, देख लो। बोले नहीं एक चीज नहीं दिया। बोले सब दे दिया। बोले एक चीज नहीं दिया। बोले बता क्या है, नाम बता, मैं तुरंत दे दूंगी। बोले वो काम वाली। इतनी अच्छी काम वाली पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो माँ क्या बोली, ना वो मत मांग। मैं तो पैरालाइज हो जाऊंगी उसके बिना। तो इतनी हमारी डिपेंडेंसी हो गई है। तो ये सही बोले, काम वाली, ठीक है। काम वाली, काम वाला भी, मतलब वाली, केवल वाली लिखते हैं तो एक जेंडर इशू आ जाएगा। काम वाली या काम वाला। सिंप्लिसिटी, हाँ जी, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, हाँ, स्वतंत्रता,
एनवायरमेंट एनवायरमेंट, पर्यावरण। निर्भयता, निर्भयता, ध्यान, न्याय तो लिख दिए। ध्यान, ज्ञान, अच्छा। हेलो। हाँ जी। ये सारी आवश्यकताओं को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी आवश्यकता असीम है। असीम है? कहाँ भैया, एक बोर्ड भी नहीं भरा अभी। क्या बात कर रहे हो आप? आप दिन भर बोलिए मैं लिखूंगा, एक बोर्ड नहीं भरेगा, फिर आप रिपीट ही करोगे बार 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 बार। कम्युनिकेशन आप प्रयोग कर लीजिएगा घर पे, कॉपी में लिखना शुरू करिएगा। अगर कॉपी के 2-3 पेज भी भर जाए तो बताइएगा। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, संचार। तो संचार के साधन ना। चलिए, तो आप देखेंगे इससे काम चलाते हैं। अभी तो ये रिपीट होगा बहुत ज्यादा, हो सकता है कुछ छूट भी गया हो। इसको देख के आपको क्या लगता है? मैंने बीच में लाइन खींची है, ये वाली लाइन मिटा दीजिए। मैंने यहां बीच में लाइन खींची है। देखिए आप, शायद आप लोग को बोर्ड नहीं दिख रहा होगा। इसको देख के आपको कुछ लगता है? ये वाली घड़ी खराब हो गई है, कुछ सेल का प्रॉब्लम है। हाँ जी, एक्चुअली आप, मेरा ध्यान चला गया तो उसमें अभी 9 ही नहीं बजा है। हाँ जी, आपको कुछ दिखता है इसको देख के? कोई कुछ ध्यान जा रहा है? हाँ जी भैया, वो जो लेफ्ट साइड लिखी है सब, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखती है, मतलब साधन है वो। कौन सा? साधन से आएगी ये रोटी, ये? कपड़ा, मकान। हाँ। और ये? वो सब भाव है, अंदर से आने वाली चीज है। चाणक्य। हाँ, एक बात यहां से निकल के आई कि जो ये बॉक्स नंबर 1 है ये सुविधा है, बॉक्स नंबर 2 है ये भाव है। सर वो कल आपने किया था ना, जिंदा रहना और जीना। हाँ, उसमें जो जो आया था ना वो इसमें भी है। हाँ, ये जिंदा रहने का सामान है और ये जीने का। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान जाने से क्या जाता है? ये सुविधाएं हैं और ये भाव है, इससे आपका ध्यान क्या जाता है? हमने जरूरतों की बात किया था, आवश्यकताओं की बात किया था, और हमको लग रहा है ये सुविधाएं हैं और ये भाव है, इससे आपका ध्यान क्या जा रहा है? बस उसका उपयोग करके उस भाव में जीना है, वही तो सुख है। इसका उपयोग करते हुए इस भाव को पाना है, इस भाव में जीना है। हाँ, और कोई? हाँ जी, इधर दीजिए माइक। सुविधाएं जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ने पर चाहिए, और ये जो है भाव वो हमको निरंतर चाहिए। ये सारा निरंतर चाहिए, ये जरूरत पे चाहिए। बढ़िया। और जीने के लिए भाव की संख्या ज़्यादा चाहिए, सुविधा कम चाहिए। हाँ, जीने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, सुविधा कम भी रहेगी तो चलेगा, ऐसा आपका कहना है। मेरा कहना नहीं है, मैं तो कह रहा हूं सुविधा जितनी चाहिए लीजिए। और और चलिए, हाँ जी, नियति को दीजिए।
देखिए बोलते रहिए तब नाम याद होगा हमको। अब 2 ही 4 लोग बोलेंगे तो उनका नाम याद रहेगा, आपको लगेगा इनका ही नाम क्यों याद है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाँ जी। ये जितने भी भाव है, माइक को ऐसे सीधा। अच्छा हाँ, ये सभी जो भाव हमने लिखे यहाँ पर और ये जो सुविधा है सब हमने लिखी, तो भाव की सुविधा जो है वो बाय प्रोडक्ट है। सुविधा का बाई प्रोडक्ट है भाव? नहीं, भाव का बाय प्रोडक्ट सुविधा है। सुविधा है। हाँ। अच्छा, ये आपका मूल्यांकन है। हाँ। चलिए ठीक है। हाँ जी। हेलो। कहाँ पर? हाँ। जो सुविधा है वो बाहर की चीज़, मतलब जो पहला है वो बाहर से मिलता है, बाहर का है, और जो सेकंड वाला है जीना में, वो मेरे अंदर, मेरे में है। हाँ, ये मेरे में पहचानना होता है और ये पाना होता है बाहर से। हेलो। आपका वही सेम मिल गया, मैच हो गया, मित्रता पहले से है, आज करेंगे। हाँ जी, कहाँ पर? सीम है। हाँ, ये सारी जो है वो सीमित होंगी और ये असीम होंगी, और ये हमको असीम ही चाहिए भी। जो फर्स्ट वाला है उसकी कुछ बाउंड्री है, कुछ वो दिखता है, और जो सेकंड वाला है उसको हम महसूस ही कर सकते हैं। माइक की आवाज कम है, कहीं से बढ़ाइए, क्योंकि सब तक नहीं जा रहा होगा। जो सुविधा है, जो फर्स्ट वाला है, उसकी कुछ बाउंड्री है, वो हमें दिखता है। हाँ, इसकी बाउंड्री है, ये दिखता है। और जो सेकंड वाला है वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो रियलिटी है। हाँ ठीक। बट उसका कुछ बाउंड्री है, वो ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया। वो पीछे एक माइक तो कोई पीछे ही रखिए रहा था। हाँ, તો મેં એવું વિચાર્યું છે કે આજના યુગનો માણસ એવો થઈ ગયો છે કે હરણ હોય ને, હરણ એ પોતાના જે સુગંધ હોય એની શોધમાં બહાર ફરે જાય એ સુગંધને શોધવા માટે, પણ ખરેખર એ સુગંધ તો આપણી અંદર જ પડેલી છે. મતલબ જે બીજા નંબરના પોઈન્ટ છે આપણી અંદર પડેલા છે, પણ આપણે એને જોયા જ નથી, અને પેલા પોઈન્ટને આપણે બરોબર ઉપયોગ કરીએ છીએ. बताइए भैया क्या बोल रहे हैं? मतलब हाँ, कि बेसिकली वही बोल रहे हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो अपने अंदर ही है। हाँ। और हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो बाहर ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, वो ये एक के स्तर से। ठीक ठीक है, बढ़िया। यस, जो पहले वाला हो है वो सब पैसों से खरीदा जा सकता है, और दूसरे वाला है वो मनुष्य के अंदर सब भाव होते हैं। हाँ, जैसे आपने लिखा है सम्मान, विश्वास है, बहुत मनुष्य बढ़िया। को कोई इसमें इसको पैसे हम नहीं खरीद चुकाना सकते पड़ता। हैं। यस पैसे से यस सर। इसका उत्पादन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसका ना तो उत्पादन कर सकते हैं ना खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये दूसरा वाला है ना, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है, जैसे आप अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन वो आपका व्यक्तित्व बताता है। बढ़िया इसके लिए आपको कोई खरीद फरोख्त नहीं करनी पड़ती। थैंक यू जी। तो कुल मिला करके इन सब चीजों से ध्यान कहाँ जाता है? हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? आशीष। पहले वाला है वो हार्डवेयर की ज़रूरत है, और दूसरे वाला है सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, मतलब जीवन की ज़रूरत है। पहले हाँ। वाला शरीर की ज़रूरत है, और पहले वाले में सुख क्षणिक रहेगा और दूसरे वाले में निरंतर सुख रहेगा। नहीं, अभी नामकरण करने से थोड़ा सा बच रहे हैं, ठीक है, उस पे आ रहे हैं हम, क्योंकि आप जब बोल देंगे तो नाम ले लेंगे तो पता नहीं वो क्या चला जाएगा। तो ये क्वांटिटेटिव है। हाँ, ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। बढ़िया जी। दूसरे वाला जो है वो हमारे अस्तित्व की पहचान दिलाता है हमें। हाँ, बढ़िया। तो ध्यान क्या जा रहा है कि मानव को स्पष्टतः दोनों की जरूरत है। इसकी जरूरत, इसको हटा दिया जाए तो काम चलेगा? ये सारी चीजें हटा दी जाएं, न उपलब्ध कराई जाएं, तो आदमी का काम चलेगा? और ये हटा दिया जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। यानी पहली चीज सारी बातों से स्पष्ट हो रही है कि मानव की ये दोनों प्रकार की जरूरतें हैं, दोनों प्रकार की जरूरतें हैं।
तो जो शुरू में हमने लिखा था सुविधा भी चाहिए और सुख भी चाहिए, तो क्या इसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं भौतिक, फिजिकल, और इसको बोल रहे हैं भाव। भौतिक और भाव में क्या अंतर होता है? भौतिक चीजें जैसे बोल रही थी सीमा होती है, अर्थात भौतिक चीजें इंद्रियों की पकड़ में आती हैं, नाक से, कान से, आंख से, हाथ से, पैर से, मतलब दिखती हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो ये इंद्रियों की सीमा में आती हैं, तो उसको भौतिक बोलते हैं। जो इंद्रियों की सीमा में नहीं आती उसको भाव बोलते हैं। तो मानव की दो तरह की जरूरतें हैं, भौतिक और भाव, और दोनों ही जरूरतें हैं। भौतिक भी जरूरी है और भाव भी जरूरी है। अब इसमें देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल को देखिए, इसको ऐच्छिक बोलते हैं, इसको अनैच्छिक भी बोलते हैं। मतलब जैसे अपने में क्रियाओं को देखें, इसको जो आवश्यकताओं से हट के थोड़ा सा मैं अपने में क्रिया को देखूं, तो मेरे में कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक मतलब मेरी इच्छा से होती हैं, अनैच्छिक मतलब अपने आप होती हैं। जैसे हार्ट पंप करना अपने आप होता है, ऐच्छिक नहीं है। माने आप अपनी इच्छा लगाएंगे तो कुछ गड़बड़ी है। हाँ, धमनियों में खून का घूमना अपने आप है, किडनी का काम करना, लीवर का काम करना, आंतों का काम करना, ये सब क्या है? श्वास का आना जाना, ये सब क्या है? अपने आप है। भूख लगना, भूख लगना अपने आप है। तो कुछ चीजें मेरे में अपने आप होती हैं। जैसे कुछ, अभी इसको टिकाएंगे कहां? अभी आगे लाके इस पे टिकाएंगे। तो कुछ चीजें हमारे में अपने आप होती हैं और कुछ चीजें मैं जानबूझ के करता हूं। जैसे भूख लगना, ये अपने आप है या जानबूझ के है? अपने आप। तो मुझे भूख लगा, अपने आप। अब उसके आगे मेरा निर्णय क्या होगा? तो दो निर्णय हो सकते हैं, खाऊं या ना खाऊं। अब मान लीजिए मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं क्या निर्णय लूंगा? नहीं खाऊंगा। भूख लग रही है लेकिन निर्णय क्या है? नहीं खाऊंगा। तो ये जानबूझ के है। फिर मान लीजिए मेरा निर्णय हो गया कि मैं खाऊंगा, तो फिर उसके आगे क्या निर्णय आएगा? क्या खाऊंगा? भाई एक तरीका है कि जो मिल जाए वही खा लूंगा, दूसरा तरीका नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाजार से कुछ ला के खाऊंगा, अपना कुछ अलग बना के खाऊंगा, पानी। तो कुल मिलाकर के मेरे में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होती है अपने आप और एक होती है जानबूझ के। उसी प्रकार के मेरे में दो तरह की आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकताएं हैं जो भौतिक है और एक आवश्यकताएं हैं जो भाव की है। तो जो भी जानबूझ वाली है, तो जानबूझ में क्या रहता है? डिसीजन रहता है, वस्तु नहीं रहता। जानबूझ मतलब डिसीजन। हाँ जी, जानबूझ मतलब मेरा निर्णय। तो निर्णय रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? डिसीजन मूर्त है कि अमूर्त है? अमूर्त है। भाई मुझे भूख लगी, अब मेरा निर्णय है नहीं खाना है, तो ये निर्णय अपने आप में मूर्त है कि अमूर्त है? अमूर्त है। ध्यान जा रहा है आपका? ध्यान जा रहा है?
मूर्त मतलब जो इंद्रियों की सीमा में आए। हाँ, जिसका कोई आकार होता है, कोई रूप होता है। समझ नहीं आई मूर्त अमूर्त। हाँ, वो शब्द का ही थोड़ा फंस गया। रूप और अरूप समझ में आता है? जिसका आकार हो रूप वो रूप हाँ, जिसका कोई रूप हो, आकार हो, हाँ जो इंद्रियों की सीमा में आए जी। और जिसका कोई रूप ना हो, आकार ना हो। जैसे इधर जितनी भी चीजें उनका कोई रूप और आकार नहीं है, तो ये अमूर्त है। मतलब ये इंद्रियों की सीमा में नहीं आते, ये अमूर्त मूर्त छोड़ देते हैं, ये अरूपात्मक हैं। अरूपात्मक है और ये सारी रूपात्मक है। मतलब जिसको फील करना है वो, जिसको जो फील है, जो फीलिंग है वो अरूपात्मक है, इसका रूप नहीं होता। जैसे प्यार का रूप नहीं होता जी। प्यार की साइज भी नहीं होती। मैं आपको प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। कितना प्यार करता हूं? तो मैं आपको 15 फीट की गाड़ी लाके देता हूं, तो मैं आपको 15 फीट का प्यार करता हूं। मैं आपको 4 कमरे का मकान भेंट करता हूं, तो मैं आपको 4 कमरे वाला प्यार करता हूं। तो प्यार की कोई साइज होती है? तो छोटी वाली अंगूठी देता हूं तो उस साइज का प्यार है, बड़ी अंगूठी देता हूं तो थोड़ा बड़ा प्यार है। तो प्यार आपको थोड़ा बहुत चाहिए, छोटा बड़ा चाहिए कि प्यार चाहिए? तो प्यार की कोई साइज नहीं होती। अर्थात ये जितनी भी चीजें इनका कोई रूप नहीं होता। तो एक्चुअली मेरे में जो क्रिया हो रही है वो भी 2 तरह की हो रही है। मेरी आवश्यकताएं तो 2 तरह की हैं, भौतिक है और भाव है। मेरे में क्रिया भी 2 तरह की हो रही है। एक क्रिया है जो रूपात्मक है, एक क्रिया है जो अरूपात्मक है। जैसे निर्णय जानबूझकर, उसका परिणाम रूपात्मक होगा, लेकिन जो निर्णय लिया वो अरूपात्मक था। जैसे अभी आप यहां बैठे हुए हैं, अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि इसके बाद निकल के आप कहां जाएंगे। आपको भी अभी विचार में ही पता है, शरीर से नहीं पता है। लेकिन क्या हुआ, आप निर्णय लिए और उठ के बाहर गए। तो मैं बोला इसका मतलब है जिनको बाहर जाना था, लेकिन जब गए तो उसका रिजल्ट हमको दिखा, निर्णय नहीं दिखा। किसी का डिसीजन दिखता है? नहीं दिखता। उस डिसीजन से जो होता है वो दिखता है। तो कुल मिलाकर के मेरे अंदर 2 तरह की क्रियाएं हैं और उन 2 तरह की क्रियाओं की आवश्यकताएं भी 2 तरह की हैं। इसलिए मेरा ये ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। ये सारी जरूरतें शरीर की हैं, इसमें से एक भी जरूरत शरीर को नहीं है। शरीर को भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए। अब कोई कह रहा भूख लगी है, आप कहिए मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। कह रहा भूख लगी है, कल भी इसकी चर्चा हुई थी। प्यास लगी है, बहुत स्नेह करता हूं आपको। तो शरीर को स्नेह नहीं चाहिए, शरीर को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आनंद नहीं चाहिए, करुणा नहीं चाहिए, सहयोग नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए। शरीर को सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। शरीर को जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। मतलब किसको है? इसको है। तो इसको बोलेंगे मैं हूं और शरीर है। जीने मरने का चक्कर मुझे है, मेरे शरीर को नहीं है। निर्णय मैं करता हूं, मेरा शरीर कोई निर्णय नहीं करता। ध्यान जा रहा आपका? क्या ध्यान जा रहा है? मैं केवल शरीर नहीं हूं,
मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं, मैं सुखी होता हूं, मैं दुखी होता हूं। मेरा शरीर नहीं सोचता, मेरा शरीर विचार नहीं करता, मेरा शरीर सुखी नहीं होता, मेरा शरीर दुखी भी नहीं होता। शरीर को अगर कोई दंड देता है तो सुखी दुखी कौन होता है? उस दंड से दुखी कौन होता है? मैं होता हूं, शरीर नहीं होता। मेरे शरीर में कहीं कट गया कुछ, तो दर्द शरीर को होता है या मुझे होता है? हाँ जी, शरीर में चोट लग गई, कट गया, तो दर्द किसको होता है? मुझे होता है या शरीर को होता है? आप जांच के देखिए, शरीर को नहीं होता, मुझे ही होता है। मेरे शरीर के आधार पे किसी ने मेरा अपमान किया, तो अपमान शरीर को महसूस हुआ या मुझे महसूस हुआ? मेरे शरीर के आधार पे, मेरे पद के आधार पे, मेरे धन के आधार पे, मेरे बल के आधार पे अगर किसी ने मेरा सम्मान किया, तो सम्मान शरीर को मिलता है या मुझे मिलता है? उसकी फीलिंग किसको होती है? मुझे होती है। तो कहां ले जाने की कोशिश की जा रही है? मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अलावा भी कुछ हूं और शरीर के साथ ही हूं, शरीर से अलग भी नहीं हूं। तो मैं हूं और मेरा शरीर है। बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं, देखो जी मेरे शरीर को चोट न लग जाए। ये हाथ किसका है? मेरा है। ये उंगली किसकी है? मेरी है। ये पैर किसका है? मेरा है। पेट किसका है? मेरा है। तो आप क्या हैं? ये मेरा शरीर है, ये मेरा कपड़ा है और ये मेरा शरीर है। इसका मतलब मैं भी कुछ हूं। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं, लेकिन उसको अलग रियलिटी के रूप में हमने पहचाना नहीं है, क्योंकि कोई अलग वास्तविकता है। अच्छा, पहचाना भी है तो केवल शब्द है मेरे पास। जैसे अगर बोला मैं आत्मा हूं, तो कोई आत्मा का स्वरूप मेरे ध्यान में नहीं है। भैया कहां पर? ये मैं है क्या? हाथ खड़ा करिए। हाँ, ये मैं कौन है? मैं? हाँ, उसी पे तो बात करेंगे। पर वो कैसे पहचाना जाए मैं क्या है? अभी आपकी जिज्ञासा तो आए। मैं तो इतनी देर से जिज्ञासा ही पैदा कर रहा हूं। आपकी जिज्ञासा आए कि मैं है क्या, मैं है भी कि नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं तो मैं है क्या? आपको क्या लगता है शरीर के अलावा भी कुछ है? नहीं, वो तो पूछ रहा हूँ है मैं क्या है। हाँ, पहले ये तो सेट हो कि आप केवल शरीर हैं कि कुछ और भी हैं। आप ही से पूछ रहे भैया। शरीर तो आपको क्या लगता है? शरीर तो हुई है ही। उसके साथ ही मैं भी कोई चीज है। हाँ, जो विचार करती है, जो सोचती है, जो सुखी दुखी होती है। जैसे मैं सुखी होता हूँ तो शरीर के कौन से अंग में सुखी होता हूँ? तो उसका कोई दूसरा नाम होगा, वो क्या है, अर्थ क्या है मैं का? हाँ, मैं को पहचाने कैसे? हाँ, तो मैं शब्द थोड़ा सा परंपरा में अच्छा नहीं माना गया। मैं मतलब अहंकार से जोड़ दिया गया, इसलिए इसको यहाँ इस कंटेंट में एक नाम दिया गया। सर जी। हाँ जी। यानी मैं यानी मन कहा जाता है। हाँ, मन कह सकते हैं। हाँ जी, देख लिया मैं। चाय का ब्रेक होने वाला है जी। जी दीदी, माइक बैठे बैठे। हाँ जी। माइक में। हेलो जी, फिर से एक बार। जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये धीमे वाला माइक है। और नजदीक। अच्छा, अभी आ रही है? अभी आ रहे। मैं ये जानना चाह रही थी कि मुझे जो भी तकलीफें हो रही, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि मैं और शरीर अलग है, लेकिन मुझे जो भी तकलीफें हुई वो शरीर के कारण हुई। और जैसे आप तो लेकिन तकलीफ किसको हुई? हाँ,
नहीं वो मुझे हुई, मुझे हुई। लेकिन क्या मुझे बिना शरीर के भी तकलीफ कारण होती है? शरीर हो सकता है, कारण कोई संबंधी भी हो सकता है तकलीफ का। यानी मुझे शरीर के बिना तकलीफ नहीं हो सकती है। मैं ये जानना चाह रही थी। मेरी तकलीफ का कारण मेरे शरीर के बाहर भी हो सकता है, मेरी कोई संबंध में पट नहीं रहा है, वो भी मेरी तकलीफ है। मेरे तकलीफ का कारण एक गर्मी भी हो सकती है, मेरे तकलीफ का कारण ठंडी भी हो सकती है, मेरे तकलीफ का कारण भारी बरसात भी हो सकती है। लेकिन तकलीफ को पाने वाला कौन है, मेरा शरीर या मैं? शरीर। मीन्स उनका ऐसा कहना है कि मेरे बिना क्या मैं वो तकलीफ महसूस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? हाँ जी। मैं के बिना मैं तकलीफ महसूस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ऐसे? तकलीफ महसूस करने वाली बॉडी का नाम ही मैं है। शरीर को कोई तकलीफ होता ही नहीं है, तकलीफ में मैं आता हूँ। हेलो। हाँ जी। मैं मतलब अंतःकरण को कह सकते हैं? हाँ, अंतःकरण हमारा जब आप बोल अंतःकरण। रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसा कुछ है। हाँ, इसका स्वरूप आपको पता है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ अगर किसी रियलिटी की तरफ ध्यान दिलाया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो इस मैं को यहाँ समझेंगे, तो वो बात ठीक है। मन, वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी शब्द तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं भी करूंगा, लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग करूंगा तो मैं उसको ऑब्जेक्टिवली इसी सभा में एक्सप्लोर करूंगा। सर, मैं को चेतना बोल सकते हैं? चैतन्य बोल सकते हैं। हाँ, चैतन्य। चैतन्य तो शब्द पहले से चलता आया है भाई। मैं चैतन्य हूं तभी तो मैं सुखी दुखी होता हूं। तो यहाँ एक नाम दिया गया इस दर्शन में। हाँ जी। मैं जीवात्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, ठीक है। हाँ जी। मैं को जीवन बोल सकते हैं? हाँ, उसी नाम पे आ रहे हैं। उसको जीवन क्यों बोला उसको भी बताना पड़ेगा, जीवन क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कोई नाम रखना पड़ता है कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा वो हमारे अंदर आत्मा होता है ना, बोलते हैं ना अंतःकरण वाला। हाँ वो जी। जीवन है ना। हाँ, जीवन क्यों बोल रहे हैं उसको? वही है, कुछ रियलिटी वही है ना, जीवन रियलिटी तो वही है ना। हाँ, जीवन हमारा नाम शरीर क्यों तो रखा? नाश प्राय है वो, लेकिन वो रियलिटी तो जीवन ही है कि जो आत्मा बोलते हैं उसको। जैसे जीवन बोलते हैं ना, तो अभी जो जीवन के बारे में कहा गया है, अब मैं का नामकरण यहां करते हैं तो मैं को इस दर्शन में एक नाम दिया गया है, जीवन। क्यों ये जीवन नाम दिया गया है? क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। हाँ जी, मैं जीना चाहता हूं। मेरा शरीर जीना चाहता है ऐसा नहीं है, मैं जीना चाहता हूं। इसलिए जीना चाहता हूं, इसलिए एक नाम रखा जीवन। तो मैं को ही जीवन बोल रहे हैं। अब ये जीवन बोलना स्पष्ट हो जाएगा भैया। असगर भाई, क्या नाम है? नाम थोड़ा भूल रहे हैं। वाहिद भाई। वाहिद भाई अब आ गया ध्यान। तो जो जीवन बोल रहे हैं ना, तो जीवन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। तो एक नाम रख दिया जीवन। जैसे कोई नाम रख के काम चलाना पड़ता है ना। आपका नाम वाहिद रखा गया तो सबको बताया गया कि इनका नाम वाहिद है। अब वाहिद बोलने से आप ही रिएक्ट भी करते हो, और जैसे ही वाहिद बोलेंगे शायद दूसरा कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इस कंटेंट में जो मैं है उसका एक नामकरण किया गया है, जीवन। तो आगे का कंटेंट जब हम चलाएंगे तो जीवन जब बोलेंगे तो समझ जाइए जो शरीर के साथ की रियलिटी है उसको बोल रहे हैं। अब वो है कि नहीं है तो किस स्वरूप में है, आज पूरे दिन उसी पे चर्चा करेंगे। एक दिन लगाएंगे पूरा, और अगर एक दिन में नहीं हुआ तो कल भी लगाएंगे, लेकिन निपटेंगे मैं से, क्योंकि सारी समस्या मैं के कारण है। लेकिन अभी तो शरीर को चाय चाहिए चाय लेके आते हैं।